Well, good evening, students. This is your Unit 5 of Training and Development, and this particular PPT, it contains all the slides, all the topics relating to Unit 5. Now, this shall cover specific types of training, right? For example, the first one is Total Quality Management Training for Work Effectiveness. Next topic is training for productivity. Third topic is training for creativity. Fourth is your training for problem solving. Fifth is training for leadership. And sixth is training for trainer. So in this fifth unit, all these specific type of trainings will be covered, and two more topics are also there, like what are the pitfalls in training and development, right? What are the pitfalls in training and development, and organizational learning, right? How the organization learns. So these two topics we will be doing. Let us begin. So the first that we are going to do is first understand what is total quality management training. So TQM has been defined in several ways. It can be defined as a cooperative form of doing. Cooperative means there is a cooperation amongst the employees of doing business that relies on talent and capability of both labor and management to continually improve the quality and productivity. The aim of total quality management is to increase the productivity and maintain the quality. And there is a joint collaboration. That's why cooperation between the workers and the management is very essentially required, right? Now, the employees can be trained for TQM so that they may imbibe these techniques in their organization. क्यों ट्रेनिंग चाहिए? क्योंकि इस टेक्निक को वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सके, राइट? सो द एलिमेंट ऑफ TQM ट्रेनिंग आर द फॉलोइंग. तो पहला क्या है बच्चों? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, राइट? So TQM aims at satisfying the customer's requirement, which never remains constant but keeps on changing with the changing in time, environment, circumstances, need, fashion, etc. देखिए, we all know that how the market demand fluctuates according to the trend, according to the times, according to the need of the society. The type of products needs modification. So that's why, in order to satisfy the basic need of the customers, because ultimately either there are two things: either we are catering to the need as a product, physical product, or a service. Whatever be the case, ultimately there should be a continuous improvement, because things are not static, they keep on changing. समय बदलाव का है, और बदलते दौर में मार्केट चेंज होता है, लोगों की प्रेफरेंस चेंज होती है, ठीक है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो भी चेंज करते हैं, मजबूर करते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोविड के टाइम में एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है? मास्क की डिमांड खूब है, तो नेचुरली मास्क मैन्युफैक्चरिंग खूब हो रहा है, सैनिटाइजर खूब बन रहा है, तो एनवायरमेंट भी बहुत है. जो समय चल रहा है, काल, सर्कमस्टांसेस, कोविड का सर्कमस्टांसेस, बहुत सारी चीजों की डिमांड बहुत कम हो गई है, बट बहुत सारी चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है. तो इन सारी चीजों का नीड, फैशन एक्सेट्रा, अगर वो लोगों के फैशन से रिलेटेड चीजें लाइक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स लाइक शूज, क्लोथ्स, दिस, डिजाइनर क्लोथ्स, दिस दैट, तो नेचुरली कोई भी रिक्वायरमेंट मार्केट की या कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज टू कंटिन्यूअसली इंप्रूव इटसेल्फ इन ऑर्डर टू अपग्रेड इटसेल्फ टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट, राइट? एंड इट मे बी इन टर्म्स ऑफ डिजायर फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस. अल्टीमेटली क्या है कि द need of the hour is that the customer is very demanding. We have to delight the customer. We don't have to satisfy their urges. We have to delight them. We have to provide our service and product in a manner so that they are enticed. Enticed का मतलब है वो हमसे attracted रहे, हमारे को छोड़ के ना जाए, हमारा मार्केट क्रिएटेड रहे हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए. तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. और क्वालिटी मैनेजमेंट, जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एम यही है कि हम अपने को मार्केट के मुताबिक ढालते रहे एंड वी आर एबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स नीड एंड डिमांड.
in all times, right? So we will move ahead. सेकेंड है बच्चों टीक्यू के कंसेप्ट है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट. देखिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट रिक्वायर्स अ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स. तो चूंकि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स हमें रिफाइन कर करके बेहतर से बेहतर बनाना है, द एनहांसमेंट ऑफ स्किल एंड एम्प्लॉयज इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ वर्क एंड हेल्प टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. नाउ द एनहांसमेंट ऑफ स्किल यानी कि उनका स्किल लेवल बढ़ाना है, किनका? एम्प्लॉयज का. ठीक है. एंड दैट विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द वर्क. जब उनको हम प्रॉपर, इसीलिए टीक्यूएम की ट्रेनिंग देंगे, हम उनको प्रॉपरली ट्रेन करेंगे, वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेन मिलेगा, तो नेचुरली इसका नतीजा क्या होगा? उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क, उनके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ आउटपुट पे फर्क पड़ेगा, और नेचुरली वी विल बी एबल टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वालिटी एंड ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों? इफ पीपल आर एफिशिएंट तो वेस्टेज कम होगी, वेस्टेज कम होगी तो नेचुरली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा. वेस्टेज एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाने या घटाने में. इफ वी आर एबल टू कंट्रोल द कॉस्ट, वी आर एबल टू मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो. तो कॉस्ट, लागत जितनी कम होगी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी उसी रेशियो में बढ़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वालिटी सर्किल. नाउ ये एक जापानीज कंसेप्ट भी है क्वालिटी सर्किल का टीक्यूब में, that a quality circle is a small group of employees doing similar or related work who meet regularly to identify, analyze and solve product quality problems and to improve general operation. क्या होता है कि मान लीजिए हमारे 100 वर्कर्स हैं. ठीक है. क्वालिटी सर्कल में 8 या 10 जने या 6 जने एक वर्क ग्रुप में होते हैं. ठीक है. वो रेगुलरली मीट करते हैं, वीकली मीटिंग हो सकती है, डेली मीटिंग हो सकती है, और उनका एफर्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है कि हाउ टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. तो दे ब्रेन स्टॉर्मिंग, क्योंकि देखो शॉप फ्लोर लेवल का वर्कर जो एक्चुअली मशीनों में काम कर रहा है, ही नोज हाउ टू इंप्रूव द क्वालिटी, ही नोज वेयर द रियल प्रॉब्लम इज. ठीक है. तो ये जो प्रोडक्ट और क्वालिटी का जो प्रॉब्लम है ये वही सुलझा सकते हैं. मैनेजमेंट के लोगों को टेक्निकल नॉलेज, हाथ से उनको काम करना नहीं आता. काम सुपरवाइजर करेगा, वर्कर करेगा, टेक्नीशियन करेगा, ऑपरेटर करेगा. ठीक है. तो नेचुरली अगर वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, किसी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, नए सुझाव देते हैं, और मैनेजमेंट का भी इसमें पार्टिसिपेशन चाहिए कि जो वो सुझाव देते हैं टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, वो उसको इम्प्लीमेंट करने में मदद करे, यानी कि फैसिलिटेट करे. Then benchmarking. Benchmarking is the practice of identifying, studying and building up the best practices in the industry or in the world. दुनिया में बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट कहाँ है और क्यों है, हम क्यों ना उस तक पहुंचे. दिस इज बेंचमार्किंग. चाहे वो इंडिया में हो, चाहे हम दूसरी कंट्रीज की या मल्टीनेशनल कंपनीज के कंपैरिजन में हम कहाँ हैं. तो अगर हमने बेंचमार्क कर गया कि ABCD कंपनी है जो कि वन ऑफ द बेस्ट है हमारी कंट्री में, और हमारी कंपनी अभी पीछे है, तो हमने बेंचमार्क किया है कि हम अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट उसी कंपनी के बराबर लेके जाएंगे, और वी विल डू ऑल सच थिंग्स दैट वी आर एबल टू रीच दैट स्टैंडर्ड, दैट बेंचमार्क. ठीक है. सो एंड बाय हैविंग दोज बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. सो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, अच्छी से अच्छी बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बना रही है कंपनीज, हम उनकी तुलना में कहां हैं, और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उस बेंचमार्क तक पहुंचने की कोशिश करें. सो बेंचमार्किंग भी एक तरीका है टीक्यूएम ट्रेनिंग का, जहां लोगों को ओरिएंट किया जाता है बेहतर से बेहतर चीजें अचीव करने के लिए. जस्ट इन टाइम टेक्निक, ये भी एक जापानीज टेक्निक है. जस्ट इन टाइम का मतलब होता है जस्ट इन time technique. This is not term technique, this is time technique. It is defined as a philosophy that focuses attention on elimination of waste by purchasing or manufacturing just enough through the right item just in time. The purpose of Just JIT is to produce in such a way that there is minimum work in progress and minimum stock of finished goods in inventory. Just in time का देखो बेसिक में कंसेप्ट बताता हूं बच्चों कि ना तो हमें इन्वेंट्री क्रिएट करनी है और ना ही हमें चीजें स्टॉक पाइल करनी है. जितनी रिक्वायरमेंट पर डे की है, रॉ मटेरियल भी हमारे को उतना ही चाहिए. तो लॉजिस्टिकली ऐसे अरेंज किया जाता है कि हमारी फैक्ट्री में पर डे के हिसाब से, मतलब कोई भी चीज हम एक्स्ट्रा ना लें. हमारे पास स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है. एज अ रिजल्ट इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए एक्स्ट्रा लोगों को जरूरत पड़ेगा,
एक्स्ट्रा लागत लगानी पड़ेगी। मान लीजिए रॉ मटेरियल ऐसा है जो खराब होने वाला है, तो नेचुरली अगर हम ज्यादा ले आएंगे तो क्या होगा, इन्वेंट्री मैनेज करना पड़ेगा, लोगों को लगाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी, तो उससे कॉस्ट बढ़ जाएगा। जस्ट इन टाइम कहता है कि जो रिक्वायरमेंट एक पर्टिकुलर डे की है हम वो फुलफिल करें मैन्युफैक्चरिंग में, और उतना ही सामान मार्केट में चला जाए, यानी कि स्टॉक पाइलिंग ना हो, किसी भी तरह की मतलब हमें रखने की जरूरत ना पड़े उस सामान को, ना तो रॉ मटेरियल की और ना ही फिनिश गुड। तो जस्ट इन टाइम टेक्निक, इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में और बताऊंगा।